A very good morning to all of you. So now we discuss our next chapter, that is chapter number 12, conquering distances. In last class, we have already discussed that there are so many mode of transports. लोग जो है अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को चुनते हैं अलग अलग रीजंस की वजह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए. माइग्रेशन भी पढ़े कि व्हाट इज माइग्रेशन. कैन यू टेल मी व्हाट इज माइग्रेशन? रेज योर हैंड एंड आंसर. ओके, जागृति, प्रगति, ठीक है. जागृति, अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, ma'am. Jagriti, what is migration? Yeah. One place to another place. One place to another? No, this is not a correct sentence. Pragati? Yes, ma'am. Pragati, what is migration? Yes, ma'am. Ma'am, moving from one place to another, is called migration. Very good. The people who move from one place to another is called migration. Yeah, moving from one place to another is called migration. Very good. Right answer. Sanskar. Sorry, Neerav Bharti. Unmute yourself. Yes, ma'am. Neerav, what is migration? People travel from one place to another is called migration. Very good. Neerav Bharti, mute yourself. Kumar Sanskar, unmute yourself. Yes, ma'am. Kumar Sanskar, tell me. Some people move to other cities, countries of better job, education, and business is called migration. Okay. This is the right answer. Some people are moving from one country to another, one cities to another cities due to some reasons. That is called migration. ये भी migration ही है. Okay. Right answer. Now, संस्कार, mute yourself. तो हम लोग ने माइग्रेशन तक एकदम अच्छे से समझ लिया था, सारा कुछ जो है जान गया था कि there are different mode of transport. What is migration? Now, we are discussing the development of the wheel. In next page, page number 78. Okay. Open your book and see the page number 78. Pragati. Read the first paragraph of page number 78. In ancient times, man had to walk on foot. He had to move from one place to another in search of food and shelter. If he had to cross a water body, he used a canoe, dugout, or a red boat. He had to carry his gods either on his head he had to carry his goods on his back. Either on his head or on his back. He could not travel very far. Okay? चलो हम बता दे रहे हैं क्या है. इन एंशियंट टाइम, यहाँ बात किया जा रहा है पुराने जमाने के लोगों के बारे में कि पुराने जमाने के जो लोग थे उनके पास कोई भी व्हीकल नहीं था, कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं था. देन हाउ ही कैन ट्रेवल? तो वो कैसे ट्रैवल करते थे? वो पैदल चलते थे, वॉक करते थे. इसकी वजह से जो है वो लोग जो ज्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर सकते. पैदल अगर हम लोग को जाना होगा तो हम लोग कम डिस्टेंस वाले जगहों पर जा पाएंगे, ज्यादा दूर वाले जगहों पर नहीं जा पाएंगे. तो फिर बाद में उन्होंने एक ही यूज कैनोन यानी डग आउट. अगर आप पिक्चर देख रहे होगे आपके बुक में, यहाँ पे एक पतली सी बोट नजर आ रही है, लकड़ी का जो बोट होता है वो लोग यूज करते थे नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए. He had to carry his goods
आइदर ऑन हिज हेड और ऑन हिज बैक। उनको अपना जितना भी सामान होता था या फिर अपने सर के ऊपर रखना होता था या अपने कंधों के ऊपर रख करके ले जाना पड़ता था, इसलिए वो फार अवे प्लेसेस यानी दूर जगहों पर ट्रैवल नहीं कर सकते थे। ओके, प्लीज डाउन योर हैंड। आप लोग जो रेज हैंड करके बैठे हो, सारे लोग जो है वो डाउन करके बैठो। Now, the invention of wheel changed the life of the early man. लेकिन after the invention of wheel, जैसे ही wheel का invention हुआ, वैसे ही लोगों का लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गया। He had a cart and loaded with the heavy goods on it. ठीक है, अब जो है वो भारी भारी सामान को एक साथ ले जा, मतलब उसमें उस कार्ट में, उस ठेला गाड़ी में जो है वो ले जाते थे और एक जगह से दूसरी जगह आराम से ट्रैवल कर पाते थे। ठीक है, कार्ट समझ में आता है? कार्ट मींस जो ठेला गाड़ी होता है, जो हाथों से पुल किया जाता है, हाथों से धक्का दिया जाता है, दैट इज कार्ट। He trained horses and donkeys to pull the cart and transportation of people and goods become easier. पहले तो वो अपने खुद उसको खींच करके पुल करके लेकर जाते थे, लेकिन उन्होंने फिर हॉर्स और डोंकीज को जो है वो ट्रेंड किया और बाद में उन्होंने एनिमल्स को एज अ ट्रांसपोर्ट यूज करने लगे, यानी एनिमल हॉर्स कार्ट, डोंकी कार्ट इस तरीके से उन्होंने बनाया। अब उनको खुद मेहनत नहीं करना पड़ता था, एनिमल की यूज हेल्प से वो लोग एक जगह से दूसरे जगह आराम से ट्रैवल कर सकते थे। Do you know the discovery of fire changed the life of the early man? हम लोग सब जानते हैं डिस्कवरी ऑफ अर्ली मैन की फायर की वजह से जो वे है, जो लोगों का तरीका है खाने का, वो बिल्कुल चेंज हो गया। पहले वो क्या करते थे? कच्चा खाना खाते थे, जानवरों को मार करके कच्चा मांस खाते थे या फिर फल इकट्ठा करते थे। लेकिन जैसे ही फायर का इन्वेंशन हुआ उसके बाद वो लोग पका करके खाना स्टार्ट करने लग गए। ओके, Tejas, any doubt or any questions? Tejas, unmute yourself. मैम आपने कहा था कि कल 12 and 13 का क्वेश्चन आंसर भेज देंगे। 12 and 13 का क्वेश्चन आंसर भेज देंगे। अच्छा ठीक है, चलो मेरे दिमाग से निकल गया था, आप भी हम भेज देंगे। मैसेज मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके छोड़ दिया करो अगर वैसा कुछ बात रहेगा तो। ठीक है ना। The discovery of fire changed the way of the man ate and lived. The invention of wheel changed the way he moved from one place to another. अब यहाँ बात किया जा रहा है फायर के इन्वेंशन का। इन्वेंशन ऑफ फायर, इन्वेंशन ऑफ फायर की वजह से क्या हुआ? अब जो है फूड खाने लग गए और इन्वेंशन ऑफ व्हील की वजह से क्या हुआ? इन्वेंशन ऑफ व्हील की वजह से क्या हुआ? ये जो है ट्रांसपोर्टिंग वन प्लेस टू अनदर, जो है अब आराम से एक जगह से दूसरे जगह वो ट्रैवल कर सकते थे। लिख सकते हैं कि इजीली ट्रैवल। ओके, the progress in the means of transport is closely related to the invention of wheel. अगर आप जहां भी ट्रांसपोर्ट के बारे में सुन रहे हो, वो ट्रांसपोर्ट का मतलब एकदम सिंपल वे में समझ जाना है कि जहां ट्रांसपोर्ट होगा वहां व्हील होगा। विदाउट व्हील कोई भी ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं है। सिर्फ वाटरवेज में जो है हम लोग बोट वगैरह जो है वो ट्रांसपोर्ट की वगैरह, लेकिन अब भी अब जो है बोल सकते हैं मोटर बोट होती है, जिस बोट में मोटर लगा हुआ था, तो वो मोटर में भी पंखा होता है, वो भी एक तरीके का व्हील होता है।
तो अब बहुत ही ऐसा कोई रेयर ही ट्रांसपोर्ट है जिसमें व्हील नहीं होता है, वो डिफरेंट टाइप के व्हील्स हम लोग यूज करते हैं। देखो लिखा हुआ है यू कैन सी व्हील एवरीवेयर, आप हर जगह व्हील को देख पाओगे। रिक्शा, बाईसाइकिल, स्केट्स, कार, ट्रेन, प्लेन, मशीन, फैक्ट्री एंड द फार्म इक्विपमेंट्स। The wheel have changed from round blocks of wood to rubber tire filled with air tubes. Many tires are tubeless. Can you imagine a life without wheel today? अब जो है हर जगह हम लोग को व्हील मिलता है, डिफरेंट टाइप के व्हील्स है जो अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है, कोई रबर का बना हुआ है, कोई प्लास्टिक का बना हुआ है, कोई आयरन का बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है। इनफैक्ट हमारे जो गाड़ियों में पहले क्या होता था, ट्यूब वाला टायर होता था, ठीक है, पेज नंबर 78। ट्यूब जो टायर्स होते थे उसमें ट्यूब लगा होता था जो उसमें हवा भरी होती थी। अब जो है ट्यूबलेस टायर आता है। अगर आपके घर पे बाइक है या फिर कोई और भी 4 व्हीलर है तो आप लोगों को पता होगा कि अब जितने भी न्यू वर्जन जो है ट्रांसपोर्ट के उसमें ट्यूबलेस टायर्स का यूज ज्यादा किया जाता है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे जब व्हील और टायर के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो अपना लाइफ विदाउट व्हील? हम तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब हमको कहीं भी जाना है ट्रांसपोर्ट का यूज करना है। अब विदाउट ट्रांसपोर्ट मेरा लाइफ इजी नहीं हो सकता, कंफर्टेबल नहीं हो सकता, हम कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। आज स्कूल हम आए हैं वो किसकी वजह से? तो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट के बिना तो मेरी लाइफ एकदम इनकम्प्लीट है, हम कहीं नहीं जाएंगे, स्लो वर्जन में रह जाएंगे, घर पे बैठे रह जाएंगे और कोई काम नहीं कर पाएंगे। डू यू नो द ओल्डेस्ट व्हील वाज डिस्कवर्ड इन मेसोपोटामिया, modern Iraq, part of Syria, Turkey, Iran, and it is believed to be over 5500 years old. सबसे पुराना जो बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट है वो व्हील जो है कहाँ पाया गया था? तो मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया में पाया गया, लगभग 5500 years ago, 5500 साल पुराना वहां पे एविडेंस मिला था चक्के का। ठीक है, तो सबसे पुराना व्हील जो है वो कहाँ पाया गया? मेसोपोटामिया में। अब वो कहाँ है? दैट इज मॉडर्न इराक। पहले उसका अर्ली नेम मेसोपोटामिया था, अब जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। इराक, साइरिया, टर्की, ये सारे जगहों पर वो बट गया है। चलो अब जो है हम आगे, यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे होंगे, आप लोग बुक में भी आपने कॉपी में भी बनाए होंगे ये डेवलपमेंट ऑफ व्हील के पिक्चर। रोडवेज पढ़ने से पहले जो है कल हम होमवर्क दिए थे कि आप सारे डू यू नो और ऑब्जेक्टिव्स करोगे, ठीक है। तो पहले सम्राट बहुत देर से हाथ खड़ा किया हुआ है, क्या बात है, बोलो। सम्राट अनम्यूट योरसेल्फ। मैम बोर्ड क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। बोर्ड क्लियर नहीं दिखा रहा है, आवाज सुनाई दे रही थी? यस मैम। हाँ, तो बोर्ड पे ध्यान मत दो, मेरी आवाज पे ध्यान दो। मैम आपने जो पहले लिखवाया था ना उस टाइम मैम बोर्ड क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। अच्छा कोई बात नहीं सम्राट, वो हम बस समझाने के लिए बताए, तो ऑलरेडी हम उसको बोल के बताए। चलो अब हमको ये बताइए कि क्वेश्चंस जो है हम कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, यू हैव टू रेज योर हैंड देन आंसर, ओके। फर्स्टली माय फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड द फर्स्ट एरोप्लेन? अच्छा, नीरव भारती सबसे पहले हाथ खड़ा किया है। हम पहले बता दे रहे हैं, हम फर्स्ट थ्री बच्चे जो हाथ खड़ा करेंगे उनसे पूछेंगे, ठीक है। पहले नीरव भारती हाथ खड़ा किया। नीरव भारती, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम राइट ब्रदर्स। हाँ, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट एरोप्लेन?
Ma'am, Wright brothers. Very good. Nirav, mute yourself. Samrat, unmute yourself. Yes, ma'am. Samrat, which is the most expensive mode of transport? Airways. Okay, very good. Now, Samrat, mute yourself. Ritika, unmute yourself. Yes, ma'am. Ritika, which means of transport uses animal energy? Man Tanga. Very good. Now mute yourself. Prashant Kashyap. Yes, ma'am. Prashant, which is the most cheapest mode of transport? Ma'am, waterways. Very good, Prashant. Mute yourself, Prashant. Aradhya Singh, unmute yourself. Yes, ma'am. Aradhya. The progress in the means of transport is closely related to the invention of. Wheel. Very good. चलो म्यूट करो अपने आप को. विहान राज. Yes, ma'am. विहान आप बताइए. A large number of people travel for dash. A large number of people Business. travel for dash. क्या बोला? Business. Very good. Business. Very good. Mute yourself. Marut Nandan. Unmute yourself. Yes, ma'am. मारूत आप बताइए. The first wheel was invented in dash. Yelly man. नहीं, अभी हम बताएं. The oldest wheel was invented, discovered. बोर्ड पे भी लिखे हैं हम वो. सबसे पुराना व्हील कहाँ डिस्कवर्ड हुआ था? चलो तुम नहीं बताएगा तो आयु बताएगा. आयु unmute yourself. Yes, ma'am. The oldest wheel was discovered Ma'am, Mesopotamia. in which year? In how much old? Ma'am, 550. 550? नहीं, 550 क्या? 500 years old. कितना पुराना है? तो 5500 years old. चलो ठीक है. Now first is just down your hand. आप लोग पहले हाथ नीचे करिए सब कोई. उसके बाद हमको पूछेंगे. अभी बहुत सारे बच्चों का ऑलरेडी एक एक क्वेश्चन सब बच्चों से, वैसा नहीं, सबको को चांस देना है. आप लोग हाथ नीचे करिए. विष्णु कुमार सिंह, ऋषिका, अनम्यूट योरसेल्फ. सॉरी, डाउन योर हैंड. आप लोग डाउन करके बैठिए, उसके बाद बात करेंगे. ऐसा नहीं है, पर डे जो है सारे बच्चों से पॉसिबल नहीं है क्वेश्चन करना. ठीक है. डू यू नो से हम और एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, ये बताएगा आराध्या सिंह. आप पहले हाथ नीचे करके बैठिए. पुष्कर, अनम्यूट योरसेल्फ. पुष्कर, आवाज आपकी वाइब्रेट कर रही है. Yes, ma'am.
पुष्कर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CNG? What is the full form of CNG? नहीं, आवाज आपकी ठीक से नहीं आ रही है। विष्णु कुमार सिंह, विष्णु कुमार सिंह, Yes, ma'am. what is the full form of CNG? CNG, compressed natural gas. Very good, compressed natural gas. Okay, बाकी बच्चों से कल हम पूछेंगे, आज के लिए इतना ही। डेली डेली 10-10 बच्चे जवाब देंगे, उसके बाद फिर। और एक चीज आप लोग ध्यान दे देंगे कि जो बच्चों का आज हो गया है वो कल हाथ नहीं खड़ा करेंगे। जब वो कोई और बच्चा जवाब नहीं दे पाएगा, देन यू हैव टू रेज योर हैंड। नहीं तो ऐसे नहीं, सबको को चांस मिलना चाहिए और सबको जवाब देंगे, ठीक है? ऐसे बहुत से बच्चे छूट जाते हैं। कल जो है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है रोडवेज। लेकिन रोडवेज से पहले मेरा जो है आज का होमवर्क है आपके लिए कि आप जो है चैप्टर नंबर 12 के जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है उसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वो याद करोगे। सिर्फ 3 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। कल जो बच्चों से हम क्वेश्चन करेंगे वो इसी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर से ही करेंगे, उनसे ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेंगे हम। इसलिए आपको याद करके आना है क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। आज का मेरा होमवर्क यही है आप लोगों के लिए कि आप लोग लर्न करके आओगे। लर्न क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑफ चैप्टर नंबर 12। ओके, चलो ठीक है। टू टाइप्स ऑफ रोडवेज, एक तो जो लैंड पे चल रहा है और एक ट्रैक पे, दैट इज रेल। लैंड पे जैसे कार, बस, ये सारे जो है रोड पे चलने वाले ट्रांसपोर्ट हैं। और दूसरा हो गया हमारा रेल, यानी जो ट्रैक्स पे चलता है वो भी लैंड पे ही चलता है। अगर इसको डिफाइन करना रहेगा तो हम लोग पहले इस तरीके से बताएंगे कि लैंड ट्रांसपोर्ट are divided into 2 parts. First one is roadways and second one is railways. ठीक है, रोडवेज एंड रेलवेज हम लोग जो है इस तरीके से उसको डिफाइन करेंगे। रोडवेज का, कैन यू टेल मी 2 एग्जांपल ऑफ रोडवेज? 2 एग्जांपल ऑफ roadways, the transport which run on roadways. Okay, Samrat, unmute yourself and tell me. मैम बस और कार। Very good, bus and car. Marut Nandan, unmute yourself. Can you tell me 2 example of waterways? Boat and ship. बोट एंड सी। ओके, चलो ठीक है। तो हम लोग जो PNG का फुल फॉर्म, सीएनजी का फुल फॉर्म PNG का फुल फॉर्म compressed natural gas is a full form of CNG। ये जो है रोड, हम लोग लैंड जो पढ़ रहे हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट आर डिवाइडेड इनटू रोडवेज एंड रेलवेज। ये हम लोग यहाँ तक ही आज क्लास रहने देंगे। हम लोग कल मिलेंगे वापस अपने क्लास में आपके होमवर्क के साथ में। आप लोग उसको अच्छे से करके आओगे। कोई भी डाउट्स होगा जो आज पढ़ाया गया है
उसको आप लोग घर पे एक बार रिकॉल करो, देखो कि मैम क्या पढ़ाई है। जो चीज समझ में नहीं आएगा आप लोग कल उसको पूछोगे दोबारा। ओके, तो क्लास आज हम यही ओवर करते हैं। बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।